اور سب سے پہلی خبر اس بڑی خبر کی اور آتے ہیں جہاں پر چند دن پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پر ڈیبیٹ کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کی قومی ترجمان نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور چند دنوں کے اندر اندر اب تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، کویت، OIC سمیت دیگر ملکوں کی طرف سے بھارت مخالف بیانات دیے گئے ہیں اور بھارت سے صاف کر دیا گیا ہندوستان سے صاف کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی وضاحت اور معافی مانگے۔ وہیں پر BJP لیڈ گورنمنٹ جو مرکز کے اندر ہے، دلی کے اندر جو مرکزی حکومت ہے، انہوں نے خود کو اس بیان سے الگ کر دیا ہے اور کل بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے صاف کر دیا کہ یہ قومی پالیسی نہیں ہے، یہ ملکی پالیسی نہیں ہے اور ملکی پالیسی کے اندر سبھی مذہبوں کا عزت، احترام، تقدس بحال رکھنا ہے۔ اور BJP نے بھی رات دیر گئے کارروائی کرتے ہوئے نپر شرما اور ان کے ایک اور ساتھی نوین کو یا تو پارٹی سے نکالا یا ان کے خلاف وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یعنی BJP نے بھی کارروائی شروع کرتے ہوئے یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ جو کچھ ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر ہوا وہ صحیح نہیں ہے۔ سرکار نے اپنی بات رکھی، لیکن سعودی عربیہ، قطر، UAE اور کویت سمیت کئی ملکوں نے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی جو وہاں پر دفتر کے اندر پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر ملازمین ہے ہائیسٹ رینک پر، انہیں طلب کر کے احتجاج کیا گیا۔ کویت کے اندر احتجاج ہوا، ایران نے دفتر خارجہ کے اندر طلب کر کے باضابطہ طور پر احتجاج درج کروایا ہے اور ٹویٹر پر اس وقت سب سے زیادہ یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی تنقید کرنے والے قطر اور کویت میں لوگوں کو کتنی آزادی ہے، اس پر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں۔ فریڈم ان قطر اینڈ کویت کے نام سے اس وقت ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس پر لوگ اپنی اپنی آرا جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبہ اور توہین آمیز تبصرہ کرنے پر BJP نے اپنی دو لیڈروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پارٹی کے قومی ترجمان نپر شرما کو معطل کر دیا گیا، جبکہ دلی میں پارٹی کے میڈیا سربراہ نوین جندل کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ نپر شرما اور نوین جندل کے تبصرے کی وجہ سے عرب ملکوں میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے اور یہ کب ہوا ہے جب صدر ہند بھی اس وقت غیر ملکی دورے پر ہے، قطر میں موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر ہندوستانی سامعین کے سامان کا بائیکاٹ کی اپیل ہو رہی ہے اور مخالفت بڑھنے کے پیش نظر اب بھارت سرکار کا موقف بھی آہستہ آہستہ کر کے سامنے آیا ہے۔ دفتر خارجہ نے تھوڑی دیر پہلے OIC پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ OIC کو اس طریقے سے بیانات کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ OIC نے اس بیان اور بھارت کے اندر جو انہدامی کارروائی چل رہی ہے، غیر قانونی طور پر جو مکانات تعمیر کیے گئے اس پر انہدامی کارروائی چل رہی ہے، اس پر اعتراض کیا تھا، سوال اٹھایا تھا، اس کا جواب بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا۔ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی نصیحت جو ہے وہ دے دی گئی کہ وہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، باہر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمت کلیم اس وقت ہمارے ساتھ ہے جن سے ہم مزید بات جاننے کی کوشش کریں گے۔ رحمت، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پارٹی کے قومی ترجمان نپر شرما کو معطل کر دیا گیا، نوین کو باہر کا راستہ دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو عرب دنیا ہے وہ بڑے دنوں بعد اس طریقے کی حرارت میں دیکھی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار کچھ انسیڈنٹس ہوئے تھے لیکن اتنی حرارت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اب کیا کچھ ابھی تک کا حال احوال ہے، کیونکہ صبح سے لے کر ابھی تک آپ کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے تھے کہ کیا کچھ ہوگا اور جو بھارت سرکار کی پہل ہے کیا اس کا کوئی اثر، کیا اس کا کوئی ایفیکٹ اور امپیکٹ کہیں دکھ رہا ہے؟ جی دیکھیے، اثر بہت زیادہ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے، چونکہ جس طرح سے ٹرینڈ، جس طرح سے مہم چلائی گئی وہ مہم کل تک کے یا یوں کہیں کہ آج دوپہر تک کے سرکاری مہم تھی، لیکن اب عوامی مہم ہو گئی۔ اب کویت کی بات کریں، قطر کی بات کریں، سعودی عرب کی بات کریں، ایران کی بات کریں، بحرین کی بات کریں، ان ممالک میں اب وہ مسلم آبادی جو مسلسل ان چیزوں سے کل تک کے یوں کہے کہ انہیں خبر نہیں تھی، انہیں پتہ نہیں تھا، اب ان لوگوں کو بھی پتہ چل چکا ہے جب سے بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا، تو تب سے یہ مہم اور تیز ہو گئی۔ سرکاری سطح پر جو کام کرنا تھا
सरकारी सतह पर वो काम कर दिया गया है। सरकारों की जानिब से हिंदुस्तानी सफीर को तलब करके एहतजाज दर्ज करा दिया गया है। लेकिन हमें एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और इस खबर को सोर्सेस से हमें खबर मिल रही है, कंफर्म खबर नहीं कह सकते इसे हमें खबर मिल रही है कि सऊदी अरब में, कतर में और ओमान में, ये 3 मकामात ऐसे, और पाकिस्तान में, ये 4 ऐसे ममालिक है जहां पर जो भारतीय सफारत खाने हैं, कौंसिल खाने हैं, वहां सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। ये मामूली इजाफा है, बताया जा रहा है कि सूरत हाल को देखते हुए इजाफा कर दिया गया। तो ये एक ब्रीफ है, अपडेट है जिसमें अनकन्फर्म है, अभी हो सकता है कि कुछ देर बाद कंफर्म हो जाए, लेकिन हमें आजाद जराए से इस तरह की खबरें मिल रही हैं। रही बात एहतजाज, जो इस वक्त सूरत हाल है, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के 2 बोल की वजह से, गुस्साखाना बयान की वजह से जो मुश्किल सूरत हाल इस वक्त वजारत खारजा को उठानी पड़ रही है, जिस मुश्किल सूरत हाल से वजारत खारजा गुजर रहा है वो शायद ही कोई वजारत इस वक्त गुजर रही हो। वजारत खारजा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अरब ममालिक अब तक के बहुत ही खास और अच्छे दोस्त ममालिक थे, वो पूरी तरह से नाराज हो गए। नाराजगी को दूर करते करते अरब वजारत खारजा के पसीने छूट रहे हैं, बार बार लेटर लिखा जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, सफाई दी जा रही है। OIC को चलो एक खाने में रख देते हैं और पाकिस्तान को एक खाने में रख देते हैं, लेकिन कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान और बहरीन को कहां हम रखेंगे? इन ममालिक से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इन ममालिक में बड़ी आबादी हिंदुओं की है जो हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वहां काम करते हैं, और ट्रेंड मुहिम यहां तक पहुंची है। कई ऐसे हिंदू भाई जो हमारे कुवैत, कतर में काम करते थे, उन्हें सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है, उन्हें सर्विस से बाहर निकाल दिया गया है। तो बोल किसी और ने बोली, गलती किसी और ने की, सजा आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। साथ ही साथ आज जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल ने अरब ममालिक में न सिर्फ मुल्क के तशख़्ख़ुस को, मुल्क के वक़ार को ठेस पहुंचाया है, और एक बड़ी बात जो सबसे ज्यादा अहम चीज है इस मुहिम को और रंग देने में, वो ये है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की गई है, न ही उससे हिंदुस्तानी मुसलमान मुतमईन है और न ही अरब का मुसलमान। वो सिर्फ 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर देना, ये कार्रवाई नहीं मान रहे। कार्रवाई ये होगी कि उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल की सजा दी जाए, और उन्हें जो हिंदुस्तानी तशख़्ख़ुस को, हिंदुस्तानी वक़ार को चोट पहुंचाने, ठेस पहुंचाने, या यूं कहीं कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के हवाले से जो मुकदमात होते हैं, जो दफात होते हैं, उन दफात और मुकदमात में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि ये मुहिम अभी भी तूल पकड़ रही है, ये मुहिम अभी भी रंग ला रही है। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो हिंदुस्तानी, हमारे हिंदू भाई जो कुवैत, कतर और सऊदी अरब में है, वो हमारी कंपनी के बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम मिडल ईस्ट को देखते हैं और फिर मैं जब अपनी इकोनॉमी की ओर देखता हूं, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त काफ़ी स्ट्रिक्ट मूड में है, क्योंकि 3.1% जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक GDP है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आते हुआ नजर आ रहा है। जो 1980 में 1.45% था, वो अब 3.1% तक आ गया। ये जो GDP का एक बड़ा हिस्सा इसको माना जा रहा है, ये भी एक वजह है। और फिर गल्फ जो कॉपरेशन काउंसिल है, GCC है, वो हमने गुज़श्ते दिनों में बिजनेस ट्रेड के लिए शुरू किया गया था, क्या उसको इससे धचका लगता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल एक तरह से आप इसे झटका ही मान सकते हैं, चूंकि हिंदुस्तान की GDP में कितना बड़ा रोल है उन तमाम हिंदुस्तानियों का, उन शहरियों का जो गल्फ ममालिक में है, अरब ममालिक में है, वहाँ रहते हैं, वहाँ से पैसे हिंदुस्तान भेजते हैं। तो हिंदुस्तान की GDP पे उनका बहुत रोल है। वो सब हमारे हिंदुस्तानी है, लेकिन कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं अरब ममालिक में। तो अरब ममालिक में रोजी रोटी का इंतजाम करने के मामले में इस तरह की सूरत हाल जब पैदा हुई, जहाँ से चोट लगना शुरू हुआ, धचका लगना शुरू हुआ, भारतीय प्रोडक्ट को बाहर करना शुरू किया गया, शोरूम से प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं और जो हमारे हिंदू भाई उन्हें निकाला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है न सिर्फ GCC नाराज है बल्कि OIC भी नाराज है, और कुवैत, कतर को अलग-अलग तौर पर मुल्क की हैसियत से देखें अगर तंजीम से बाहर निकालकर, तो इन ममालिक में भी हम ये जान रहे थे कि जब डिप्टी कमिश्नर होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, इनकी जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा सकता है खत लिख करके। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वहां के अमीर की जानिब से अगर इजहार किया जा रहा है, इमाम हरम की जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, उसे कंडेम किया जा रहा है, तो फिर ये मामला बहुत ही बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए हिंदुस्तान को कड़ी मेहनत करनी होगी, उन तमाम अपने दोस्त ममालिक को मनाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जो नाराजगी अभी बढ़ी है, और इसका बड़ा असर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, या फिर हिंदुस्तान के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्विस है, या हिंदुस्तान के साथ दिगर मामलात में जो ताल्लुकात हैं, उन तमाम हवालों से, उन तमाम कार्रवाई पर, उन तमाम प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ने के खतरात हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की वजारत खारजा में सुबह से लेकर के अब तक के गहमा गहमी है। खबर यह है कि लंच ब्रेक को बहुत ही छोटा कर दिया गया था, 1 घंटे का लंच ब्रेक सिर्फ 45 मिनट और आधे घंटे में ही खत्म कर दिया गया। फिर से खत का जवाब देने और सफाई पेश
करने में ही वक्त गुजर रहा है। तो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है सिर्फ दो यूं कहीं कि गलाजत ने, गंदगी ने, जिनकी वजह से पूरे हमारे अरब जो दोस्त ममालिक थे उनसे हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। और ट्रेंड है कि अवामी ट्रेंड बनता हुआ चला जा रहा है, सरकारी ट्रेंड। जाहिर सी बात है अवाम के दबाव में सरकार को आके बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अब अवामी ट्रेंड अगर और आगे भी मुहिम जारी रहती है तो फिर अरब ममालिक में से कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कुछ और फैसले ले सकते हैं, कई प्रोजेक्ट पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो खतरे बहुत हैं, ये भी बड़ा देखना इंपॉर्टेंट है। होगा ये तो एक पहलू है खबर का। दूसरा पहलू ये भी खबर है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है अनजान लोगों के लिए जिन्होंने डेथ थ्रेट भेजा था नुपुर शर्मा के लिए। इसको किस हद तक हम कंफर्म माने? और नवीन कुमार जिंदल भी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें भी जी धमकियां मिल रही हैं। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई इसकी क्या नवीयत है? जी देखिए, बिल्कुल ये खबर कंफर्म है और सही खबर है। दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है नामालूम शख्स के नाम, जो मुसलसल जब से 6 साल के लिए बर्खास्त किया गया है नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को, तब से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। धमकियां आमेज ट्वीट्स भी आ रहे हैं, खत भी आ रहे हैं और फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, SMS भी आ रहे हैं। तो उसके बाद उसकी वजह से बाज़ाब्ता तौर पर एक एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू की गई है। दिल्ली पुलिस की जानिब से यह कार्रवाई हुई है, लेकिन जहां पे कार्रवाई करने की जरूरत है वहां पे कार्रवाई नहीं हुई। आज से 3 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी नुपुर शर्मा के खिलाफ, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुंबई में भी, हैदराबाद में 3 मकामात पर, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जहां पर असल कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान होता रहा, जिसकी वजह से इतनी खराब सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, आज तक के अरब के ममालिक में कहीं भी पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज एक चीज बस लास्ट सवाल का मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज जब दफ्तर खारजा की तरफ से बयान जारी किया जा रहा था तो ओआईसी को लेकर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल था और कहा गया कि तंग जहनी करार दिया गया। जी तंग जहनी है जो ओआईसी की जिस तरीके का बयान दिया गया था। तो अगर कतर को लेकर यह कहा गया कि जनाब ये ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी खरी खरी सुनाई गई, तो ये ओआईसी और पाकिस्तान को अलग करके जो हम अरब दुनिया को देख रहे हैं ये किस हद तक सही होगा? और क्या ओआईसी वाकई तौर पर अब एक सिर्फ नाम रह गया है जो आज बयान के बाद मुझे दिख रहा है? ये देखिए, बिल्कुल ओआईसी को अगर हम हिंदुस्तान के चश्मे से देखें, एक शहरी होने के नाते, या हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से देखें, तो ओआईसी ने पिछले कई महीनों में, या यूं कहिए कि कुछ गुज़श्ता चंद सालों में जिस तरह के बयानात हिंदुस्तानी मसाइल पर दिए हैं, खासतौर से वो जम्मू कश्मीर का मामला हो या अक़लियतों का मामला हो, इन्हदामी कार्रवाई हो, बाबरी मस्जिद हो या यासीन मलिक हो, इन तमाम सूरत हाल में जिस तरह के बयानात आए हैं वो बयानात वही हैं जो पाकिस्तान बयानात देता रहा है। तो पाकिस्तान की ज़बान जिस तरह से ओआईसी की ज़बान बनकर आई है, यही वजह कि हिंदुस्तान सरकार ने ओआईसी को वही दर्जा दिया, वही अहमियत दी जो पाकिस्तान को अहमियत दे रहा था, और इसी वजह से उसको अलग अंदाज में जवाब दिया गया। ओआईसी को जिस अंदाज में जवाब दिया जाना चाहिए, चूंकि रेपुटेशन का मामला है, जिस तरह से आप अपनी अहमियत और पहचान बनाएंगे उसी अहमियत और उसी पहचान के साथ आपको जवाब भी मिलेगा। कुवैत का एक अलग मकाम है, कुवैत को उस हिसाब से जवाब दिया गया है, ओआईसी का एक अलग मकाम है हिंदुस्तान। इसलिए सबको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।